اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صل علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم بعدد ما فی جمیع القرآن حرفا حرفا وبعدد کل حرف الفا الفا۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورہ بقرہ کی تفصیلات و تشریحات پیش کر رہا ہوں۔ آج کی نشست میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 264 اور 265 شامل ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا کالذی ینفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ وبالیوم الآخر فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فأصابہ وابل فترکہ صلدا لا یقدرون علی شیء مما کسبوا واللہ لا یہدی القوم الکافرین وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اے ایمان والو، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور دکھ دے کر اس شخص کی طرح خاک میں نہ ملا دو جو اپنا مال محض لوگوں کے دکھانے کو خرچ کرتا ہے اور نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور نہ آخرت پر۔ اس خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک چٹان تھی جس پر مٹی کی تہ جمی ہوئی تھی۔ اس پر جب زور سے می برسا تو ساری مٹی بہہ گئی اور صاف چٹان کی چٹان رہ گئی۔ ایسے لوگ اپنے نزدیک خیرات کر کے جو نیکی کماتے ہیں اس سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آتا، اور کافروں کو سیدھی راہ دکھانا اللہ کا دستور نہیں ہے، اور بخلاف اس کے مثال ان لوگوں کی ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے دل کے پورے ثبات و قرار کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، جیسے کسی سطح مرتفع پر ایک باغ ہو، اگر زور کی بارش ہو جائے تو 2 گنا پھل لائے، اور اگر زور کی بارش نہ بھی ہو تو ایک ہلکی سی فوار ہی اس کے لیے کافی ہوگی۔ اور تم جو کچھ کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، اے ایمان والو، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور دکھ دے کر باطل نہ کرو۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے ہم چند الفاظ کے لغوی معنی پر غور کرتے ہیں۔ تبطلوا باطل سے ہے، اور باطل کا مادہ بطل ہے۔ عمومی طور پر باطل قرآن مجید میں حق کے مقابلہ میں آیا ہے۔ صاحب تاج العروس نے کہا ہے کہ جب کسی چیز کو کسوٹی پر پرکھا جائے اور وہ اس پر پوری نہ اترے تو اسے باطل کہتے ہیں، یعنی حق وہ جو کسوٹی پر پورا اترے اور باطل وہ جو معیار پر پورا نہ اترے۔ بطلہ سے مراد ہے بطل الشیء، جس کا مطلب ہے کسی چیز کا یوں ہی ضائع چلا جانا۔ ابن فارس رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس کے بنیادی معنی کسی چیز کا جاتے رہنا اور کم ٹھہرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح ابطال ان کے معنی ہیں کسی چیز کو خراب کر دینا یا ضائع کرنا۔ یہاں لفظ منن بھی آیا ہے، اور منن ہر اس احسان کو کہتے ہیں جس کے حاصل کرنے میں کسی قسم کی محنت و مشقت نہ اٹھائی جائے۔ من علیہ، اس پر احسان کیا، یعنی بلا معاوضہ کچھ عطا کر دینا۔ اسی طرح لغوی اعتبار سے
मन्नुन एक भारी वजन को कहते हैं। अब यहाँ उसके मानी हुए कि किसी इंसान को किसी दूसरे इंसान के भारी बोझ के नीचे दबा दिया जाए। इसी तरह बोझ के एतबार से मन्ना के मानी थका देने के भी होते हैं, लागिर और कमज़ोर कर देने के भी होते हैं। चुनांचे अब आयत मज़कूरा का मतलब ये हुआ कि ऐसा एहसान जो किसी पर बग़ैर मुआवजा के करना था, उसे जतला कर उस शख्स को उस तरह अजियत पहुंचाई जाए कि वो इसके बोझ तले अपने आप को बेबस महसूस करे। यूं ऐसा करके एहसान करने वाले का अज्र जो उसके रब की तरफ से उसे मिलना था ज़ाया हो जाएगा। बाज कम ज़र्फ लोग अगर चंद कोड़ियाँ किसी नेक काम में खर्च कर बैठते हैं तो फिर एहसान जतलाते हैं, तरह तरह से अजियत पहुंचाते हैं। मुसलमानों को ऐसी कमीना हरकत से मना कर दिया गया है। ये बहुत सख्त वार्निंग है, इसलिए अपना मुहासबा करते रहना चाहिए कि कहीं हमारे गलत रवैया की वजह से हमारे सदक़ात, ज़कात और लोगों की भलाई के दीगर काम ज़ाया तो नहीं जा रहे। अगर किसी की इमदाद इसलिए की कि वो आपका एहसान याद रखे या आप उस पर एहसान डालें और बदला तलब करें या देने के बाद उसे जताएं और उसकी इज्जत नफ्स को मजरूह करें, तो अल्लाह ताला के नज़दीक ऐसा देना ना देने के बराबर है। नाज़रीन, नुमाइश और लोगों के दिखावे की खातर खर्च करने वालों का हाल बुरा है। यह माल ज़ाया करने के मुतरादिफ है, कुछ हासिल ना होगा बल्कि असराफ है, इसकी अपनी सज़ा है। अफसोस कि आजकल बहुत से नेकी के काम दिखावे के लिए किए जाते हैं, जिनकी वजह से लोग रूहानी असरात से महरूम रहते हैं। दिखावे के खर्च से इंसान दुनिया वालों की दाद का तलबगार होता है, लेकिन दाद तो क्या मिलेगी, वो उल्टे हासद पैदा करता जाता है और अल्लाह तबारक व ताला से भी दूर होता जाता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन सदका वो है कि बाएं हाथ को मालूम ना हो कि दाएं हाथ से क्या खर्च किया गया है। हाँ, अलबत्ता इस नीयत के दूसरे लोगों में सदकात और नेकियों की आदत पड़ जाए, दिखावा जायज़ है। यानी नीयत में फ़र्क है। अगर नीयत यह है कि इससे लोगों में भी तहरीक पैदा हो सदका करने की और नेकियां करने की, तो फिर इस तरह का दिखावा जायज़ है। कल्लज़ी युनफ़िक़ु मालहु रियाअन नास वला युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फमसलुहु कमसलि सफ़वानिन अलैहि तुराबुन फ़असाबहु वाबिलुन फ़तरकहु सल्दा। जो अपना माल महज लोगों के दिखाने को खर्च करता है और ना अल्लाह पर ईमान रखता है और ना आखिरत पर, उस खर्च की मिसाल ऐसी ही है जैसे एक चट्टान की थी जिस पर मट्टी की तह जमी हुई थी। उस पर जब जोर से मींह बरसा तो सारी मट्टी बह गई और साफ चट्टान की चट्टान रह गई। बातिल तरीकों से खर्च करने की मिसाल एक चिकने पत्थर से दी गई है जिसके ऊपर थोड़ी सी मट्टी हो, उसमें अगरचे बीज बोते रहें उगेगा कुछ नहीं। जब भी बारिश होगी या वैसे ही पानी देंगे तो मट्टी बह जाएगी और बीज खुश्क होकर मर जाएगा। ऐसे ही बातिल राहों पर और बातिल तरीकों से खर्च किए गए माल ज़ाया हो जाते हैं। लिहाजा खर्च करने का सही तरीका यह है कि यह बंदों से बदला यानी क्रेडिट के लिए ना हो बल्कि अल्लाह ताला की रज़ा के लिए हो। बेहतरीन शख्स वो है जो बदला यानी क्रेडिट की ख्वाहिश के बगैर दूसरों से भलाई करता रहता है। ऐसे लोगों का थोड़ा अमल भी बहुत असरात का हामिल होगा। वमसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम मुब्तिग़ा मर्ज़ातिल्लाहि व तस्बीतम मिन अनफुसिहिम कमसलि जन्नतिन बिरबवतिन असाबहा वाबिलुन फ़ाततु कुल्ला ज़ैफ़ैन
फ़इल्लम युसिबहा वाबिलुन फ़तल वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर। और मिसाल उन लोगों की ऐसी है जो अल्लाह ताला की रज़ा जुई के लिए दिल के पूरे सबात व करार से के साथ खर्च करते हैं, जैसे किसी सतह मुर्तफ़ा पर एक बाग हो, अगर ज़ोर की बारिश हो जाए तो 2 गुना फल लाए, और अगर ज़ोर की बारिश न भी हो तो एक हल्की सी फुहार ही उसके लिए काफ़ी हो जाए, और तुम जो कुछ करते हो सब अल्लाह ताला की नज़र में है। यानी जो लोग अपना माल सिर्फ अल्लाह की रज़ा जुई के लिए खर्च करते हैं, उनकी मिसाल एक घने बाग से दी गई है जो इर्द गिर्द की ज़मीन से ऊंची और ज़रखेज़ जगह पर हो। उसका जो नज़ारा है वो तो अपनी जगह यकीनन सारे माहौल से यक्का होगा, लेकिन इस बाग के फैज़ से जो अल्लाह ताला की मखलूक़ात को फ़ायदा पहुँचता है वो भी बेमिसाल है। बारिश ज़्यादा हो या कम हो, दोनों सूरतों में खूब फल लाता है। क्या खूब मिसाल है। बारिश से मुराद अल्लाह ताला की रज़ा के लिए खर्च किया गया रिस्क है। मोमिन बंदा अमीर हो या गरीब हो, वो हर हाल में अपनी तवानाइयाँ और मालो असबाब अपने रब की खुशी में खर्च करता रहता है। और जैसा कि फरमाया गया, वह तस्बीतम मिन अनफुसिहिम, और पुख्तगी अपने नफूस की है। खर्च करते वक्त इसका दिल घबराता नहीं बल्कि मजीद मजबूती का बायस बनता है। यह वो सिफत है जो अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। इसलिए चाहिए कि हम भी अपने नफ्स को अल्लाह ताला की राह में मजबूत करते रहें और खर्च करते वक्त दिल छोटा ना करें। नाज़रीन, आयत मज़कूरा में ज़री साइंसदानों और काश्तकारों के लिए भी एक अहम साइंसी नुक्ता है कि बागात के लिए बेहतरीन ज़मीन वो है जो इर्द गिर्द की सतह से बुलंद हो और खूब ज़रखेज़ भी हो। ऐसी जगह धूप बिला रुकावट पहुँचती है और शबनम वगैरह भी खूब पड़ती है। बारिश अगर ज़्यादा हो तो पानी ठहरता नहीं। इसके बरक्स नशेबी ज़मीन बागात के लिए निस्बतन गैर मौजू है। पानी की निकासी ना होने की वजह से बाग सूख जाएगा और सूरज की रोशनी भी वहाँ कम पहुँचती है, जिसका असर वज़ाहत खुद मनफी है। यही हाल आदमियों का है, बल्कि हौसला बुलंद किरदार लोगों के काम भी बड़े ही होते हैं। आखिर में नाजरीन, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपनी राह में सदका व खैरात करने की तौफीक अता फरमाए और उसकी राह में गरीबों मिस्किनों को पर खर्च करने की भी तौफीक अता फरमाए। और साथ ही ये दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान हकीम को पढ़ने, उसको समझने और फिर उस पर अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।